So let us start to find the field due to a current carrying coil at its center. Now this is a current carrying coil in which the clockwise direction the current is flowing. This is a very small element of length dl. The plane of the coil is lying on the plane of the diagram and the direction of the current is clockwise such that the direction of magnetic field is perpendicular and into the plane. How it is into the plane? Now if you curl your fingers, अगर आप अपनी हाथ के fingers को curl करेंगे clockwise direction में, that is in the direction of the current, then thumb की direction आपकी paper की तरफ होगी, that is into the plane. सो इन दिस वे राइट हैंड थंब रूल को आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं. अगर फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब को शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो फिंगर आपकी शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और अगर फिंगर्स को आप करंट के डायरेक्शन में शो करते हैं तो थंब आपका शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को. सो हियर द करंट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन. नाउ अगेन बाय द बायो-सेवर्ट लॉ, the magnetic field due to this small current element is mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon a square. Here theta is the angle between dl and a. dl is this is the current element and a is the position vector. तो अगर हम ध्यान से देखें तो पोजीशन करंट एलिमेंट ये डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर हमारा ये है, तो सर्कुलर कॉइल में ये एंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा. सो हेयर साइन थीटा इज 90 डिग्री, साइन थीटा is equal to 1. Theta is 90 degree and sin theta is equal to 1. We reduce the formula. dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl upon a square. Now for the total magnetic field we will integrate it, and on integration we will reduce this mu naught I upon 2a, because dl का complete integration करने पर that will be equal to the circumference. Circumference is equal to 2 pi a. So formula reduces to b is equal to mu naught I upon 2a. Now if in the coil there are number of turns n, then the total magnetic field will be b is equal to mu naught ni upon 2a. Now this formula is very important for the numericals which I am going to ask in your weekly test. So till now two important formulas you have studied, that one is the field due to a current carrying coil at its center, B is equal to mu naught I upon 2a, or B is equal to mu naught Ni upon 2a. The other magnetic field due to a current carrying conductor, which is equal to mu naught I upon 2 pi a. So remember these two formulae for the numericals to be asked in the weekly test. Now let us do the last topic, today's last topic, magnetic field due to a circular loop current carrying conductor. अभी हमने जो निकाला था that was at the center of the loop. Now we will find at a point on the axial line. So here P is the point on the axis of this circular coil. This is the circular coil in which current is flowing in the anti-clockwise direction. So the plane of the coil is considered perpendicular to the plane of the diagram such that the direction of the magnetic field can be visualized on the plane of the diagram. For it, now we will consider the two small elements, current element, one xy at point C and another x dash y dash at point D. अगर इन दोनों करंट एलिमेंट्स को आप ध्यान से देखें तो एट पॉइंट C पर करंट की डायरेक्शन आपकी ये होगी और एट पॉइंट D करंट की डायरेक्शन आपकी ये होगी. तो दोनों ही पॉइंट्स पर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. करंट की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी. एक्स वाई करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और डी पॉइंट के करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज डी बी इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू आर एंड करंट एलिमेंट आई डी एल. नाउ इफ फाई इज दिस एंगल, देन फाई और वर्टिकल एंगल के बीच का ये एंगल दिस इज विल ऑल्सो बी इक्वल टू फाई. अब डी फाई को अगर हम रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट इधर हो जाता है डी बी कॉस फाई और एक कंपोनेंट डी बी साइन फाई. इसके वजह से अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो डी बी कॉस फाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और डी बी साइन फाई अगेन सेम डायरेक्शन में. सो यहाँ से ये क्लियर है कि डी बी कॉस फाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम है, सो देयर रिजल्ट विल बी कैंसल्ड आउट.
only the vertical horizontal component dB sin phi will be added up. सो अगर हम इस पॉइंट पर इस पूरे सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें तो dB sin phi को हमें इंटीग्रेट करना होगा. सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जो कि बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंगली है. और थीटा इस एक्सप्रेशन में जो थीटा एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर. अभी हमने ये शो करके बताया था कि ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा. अब ये एंगल 90 डिग्री हुआ तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी. यहाँ पर ये साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी और ये वैल्यू होगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल आर स्क्वायर. अब इस dB के दो हमने कंपोनेंट किए, एक dB साइन फाई और एक dB कॉस फाई. dB कॉस फाई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सिर्फ dB साइन फाई कंपोनेंट ही है जो एडअप हो रहा है. तो इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन फाई. dB की वैल्यू यहाँ से इस एक्सप्रेशन में पुट करी, ये dB की वैल्यू यहाँ से इस एक्सप्रेशन में, तो B म्यू नॉट आइडियल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एंड साइन फाई इज द फैक्टर जो इसमें आया. अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो dl है, बाकी सारी टर्म्स इसके लिए कांस्टेंट है. dl आपका टोटल इंटीग्रेशन dl का हो जाएगा दैट द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द कॉइल विच इज इक्वल टू 2 पाई a. तो इसमें सर्कम्फ्रेंस की वैल्यू पुट करी, इसी के साथ साथ साइन फाई. अब साइन फाई की वैल्यू कैसे आई, यहाँ से देखिए साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर इज a एंड हाइपोटेन्यूज इज r. इस ट्राइंगल में इस r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो साइन फाई विल बी a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड r इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो यूजिंग दीज वैल्यूज, so by putting these values in this expression we will reduce the expression to B is equal to mu naught I a square upon 2a square plus x square raised to power 3 by 2. So here mu naught I a sin phi are constant, integration of dl is 2 pi a, and r and sin phi are replaced with measurable and constant values, and we get the result B is equal to mu naught I a square upon 2a square plus x square raised to power 3 by 2 a. So this is the value of the magnetic field at any axial point which is at a distance x from the center of the coil. Now here the special cases, that again वही special case that is at the center when x is equal to 0. सेंटर का मतलब क्या हुआ, फिर आपका जो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम हो गया. तो यहाँ भी हमने मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे निकाली थी, यहाँ हमने जनरल वैल्यू निकाली और इसको स्पेशल केस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एट एक्स इज इक्वल टू 0. इसे एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करने पर दिस एक्सप्रेशन चेंजेस अगेन टू द सेम, दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a. So this expression is very important for the numerical purpose. Now second special case, if the observation point is very far away, that is a is very larger than smaller than x, or x is very larger than a, means size of the circular coil is very small in comparison to the point of observation. In that case this will reduce to b is equal to mu naught I a square upon 2x cube. Now these are the different views of the direction of the current and magnetic field due to a circular loop. Just understand it. Let us see that ये जो green color का दिखाई दे रहा है, this is the सर्कुलर कॉइल. आप इसे एक बैंगल की फॉर्म में समझ लीजिए कि ये बैंगल आपकी सर्कुलर कॉइल है जिसमें कि करंट फ्लो कर रही है. तब फिंगर्स को आप इस कर्ल की फॉर्म में शो करेंगे. फिंगर्स जो है करंट की डायरेक्शन को, बैंगल्स की डायरेक्शन को शो करेंगे, और ये कहिए कि हाथ में आप बैंगल को पकड़ लीजिए. तो जो थंब की डायरेक्शन है दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. और यहाँ पर ये अगर आपने ये जो करंट की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, इस डायरेक्शन में अगर आपने अपना थंब रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये जो सर्कल फॉर्म में दिखाई दे रहा है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है.
तो ये दो डिफरेंट व्यूज़ हैं जिसमें कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर सकते हैं। हेयर ये मैग्नेटिक, ये आपका रेड कलर का, पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द करंट कैरिंग कॉइल। तो इसके पास यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, और ये फिर आपकी सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। सो बी केयरफुल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हम राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट हमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। So that is all. Thank you.